इस कार के अंदर स्लाइडेबल वाला कोई पार्ट ही नहीं है, जैसे नॉर्मल कार्स के अंदर आप हाँ। एडजस्ट करते हो, इसके अंदर आपका इलेक्ट्रिक के लिए है। ओके, अच्छा, ओके ओके। हाँ हाँ हाँ। ओ सीरियसली? अरे, तो ये भी, अच्छा ये भी ओके। तो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल ऑफ राइट हियर राइट नाउ। और इस वक्त मैं हूँ BYD के सबसे बड़े शोरूम दिल्ली में, दिल्ली मोती नगर शिवाजी रोड। तो गाइस, अभी ऐसा है कि शोरूम अभी इनॉग्रेशन होने वाला है, पर हमें एंट्री मिल चुकी है और आप देख सकते हो शो शुरू होने वाला है। पर क्योंकि मैं बहुत खास मेहमान हूँ, मैं मुंबई से आया हूँ, तो इसलिए मुझे पहले एंट्री मिल गई है। और भी थोड़े कुछ मीडिया के लोग हैं, शायद और भी आगे एक्सपेक्टेड है, लेकिन ये शोरूम को देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि ये शोरूम जो है काफी 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 चार चांद लगाने वाला है दिल्ली में। जितनी भी ईवी कंपनीज है जैसे टाटा महिंद्रा, उनको सब टफ कंपटीशन मिलने वाला है BYD से। BYD यानी बिल्ड योर ड्रीम्स। और ये भारत का सबसे बड़ा शोरूम जो दिल्ली में खुला है, मोती नगर शिवाजी रोड। अभी शोरूम का इनॉग्रेशन नहीं हुआ है, लेकिन हमें एंट्री पहले दे दी गई है। जो मीडिया से हैं, जो यूट्यूबर है, कंटेंट क्रिएटर्स हैं, उन सबको एंट्री पहले से ही मिल चुकी है। और अभी हम फिलहाल अटेंड करने वाले एक मेगा इवेंट जो कि होने वाला है कितने देर में मुझे नहीं पता, बट आई एम वेटिंग, आई एम क्रॉसिंग माई फिंगर्स कि कोई सीनियर डिग्नेटरीज फ्रॉम चाइना शायद आए वहां से। मैं बहुत एक्साइटेड था BYD की यूंगडैंग वाली कार में, जो कि 360 डिग्री घूम जाती है। बट वो कार अभी आई नहीं है। हो सकता है कि शायद फ्यूचर में आए। फिलहाल हमारे पास सिर्फ ये दो कार हैं, एक ये BYD सील जो कि सेडान है, और BYD सी लाइन 7 जो कि एक SUV है। आगे क्या होगा देखते रहिए, राइट हियर राइट नाउ।
Vishal Sharma, I am the PR of Indian Border. It is part of India's largest population component. Thank you for joining us on this session. As we know, the latest GPS defined show in the heart of the city. Without further ado, let's begin by watching a short video that offers explains Triple DYD's global journey and innovation. BYD की जर्नी दिखाई दे BYD is the next show from here. Now, my grandpa said the BYD is the myth from the East. My mom was in BYD. She said BYD is your genes. Simply an unforgettable model I've ever seen. It's the most reliable companion to cross in this world. Is the new biz in the arena. BYD is my business model on wheels. It needs to be fun and smart. That's the BYD magic. All I know is it has become the star of the house now. Wow, it's such awesome! That's what's truly BYD. Where is flying to? Of course, you're the dream teammate you can ever wish for. He is daring and adventurous. BYD is green in motion. These be very proud of heritage. It's the way back home. BYD has over 100,000 engineers. It harvests sunlight, powering dreams in over 100 countries. Who is BYD to you? This is BYD. Thank you.
inviting Mr. Rajiv Sangvi, President Director of PPS Motors, to share his thoughts on this key milestone, starting PPS BYD entry into market. Once again, very good morning to all of you and a very warm welcome to the launch of this BYD facility. I would like to thank Rajiv for taking his valuable time out, and also the BYD team which has come along for this gracing this occasion, and also all of the media members for their presence. And Delhi also is the largest market in the country, so we are also very excited about what this partnership can potentially do in this city. BYD as a product, I think all of you are aware that in terms of the legendary blade battery and all the other features, particularly for a city like Delhi, it's like a refreshing change. So we are also trying to see what for BYD it's in the country. We have a frontage, as you can see, for probably around 58 feet, internal height of 12 feet, and it has a display of 7 cars. So maybe I think all the cars which Rajiv facility, all our manpower also is trained by BYD guys. The experience that you get overall will also be like business class. So once again, thank you for joining us here, and I would now request Rajiv to share his thoughts with the media. Rajiv, please. Hello everyone. Can you hear me all right? Yes. Okay. So, thank you, Rajiv, for the kind words that you said, and perhaps a few tasks that we have to accomplish together. But I welcome to work tirelessly for us for the last 6 months to get this place in shape. And yes, Rajiv mentioned correctly. He said perhaps, but no, it's not perhaps. It is the biggest showroom for BYD India, and we are extremely proud that it is starting today. Today is auspicious in the way what is happening tomorrow, so we can perhaps relate it that way as well. We specifically chose this timing that let's have this Navratri season begin, and then move on improving our market situation, market share. Right. So I'm Rajiv as well. It's a coincidence. I am responsible for BYD business for electric cars in India. And we have been in India for the last 4 years, and we have seen absolutely great potential for electric cars in the market. And therefore, our journey since last 4 years has been tremendous. Just to hold a number, weeks back rather, blade battery 2.0. So that is the kind of progress BYD has been able to make. This new architecture can have the charging being accomplished. Yes, for only 5 minutes, you would be able to do justice to this market, to the consumers who are sitting here and waiting for extremely good services and products. So that's all from my side for the moment, and congratulations, BPS, once again. Thank you. तो गाइस, जैसा आप देख सकते हो, BYD ये पहला शोरूम नहीं है, पर ये भारत में दिल्ली में सबसे बड़ा शोरूम खुला है मोती नगर शिवाजी रोड में। ठीक है, तो ये शोरूम जो है काफ़ी बड़ा है। ये 48 शोरूम है जो इंडिया का है, और लार्जेस्ट शोरूम जो है यहाँ दिल्ली में खुला है। आप देख सकते हो PPS मोटर्स के साथ। मैं ओपन कर सकता हूँ? ओके, अच्छा, इसमें स्पेस भी है। अच्छा, ओके, और पीछे भी है और इधर भी। अच्छा, ओके ओके ओके। सो ये तो लिक्विड का रहेगा, पानी वाइपर फ्लूइड। एंड दैट वन ब्रेक फ्लूइड। ओके, सो नो इंजन ऑयल, नथिंग, जस्ट बैटरी, ये वाइपर फ्लूइड एंड brake fluid, right? You can easily carry your normal charger and portable charger. Okay. स्मार्ट इंजीनियरिंग BYD की। यहाँ पे एक आपको बटन दिया जा रहा है, यहाँ पे आप बटन जस्ट क्लिक करोगे और आपका बोनेट जो है खुल जाएगा। ये देखो, और यहाँ पे आपको स्पीकर मिलेगा। यहाँ पे कुछ रखने को है, वैसे मुझे समझ
काफ़ी बड़ा बैग्स तो नहीं आ सकते, बड़े बैग्स तो नहीं आ सकते, लेकिन हाँ एक बड़ा बैग ज़रूर आ सकता है और एक छोटा बैग ज़रूर आ सकता है, इतना चल जाएगा। एंड फैमिली फॉर फन, यस ओके। तो ये इसको हाथ से नहीं बंद कर सकते, इसको आपको ये बटन दबाना पड़ेगा और ये अपने आप बंद हो जाएगी, नो हार्ड वर्क टू डू, और ये लॉक भी हो जाएगी अपने आप। तो स्मार्ट इंजीनियरिंग करी है BYD ने। ये देखो सेंसर्स भी लगे, ये कैमरा भी दिया हुआ है, कॉन्टिनेंटल टायर्स लगे, इको कॉन्टैक्ट 6Q 235 बाय 45 R19, यस। तो 235 बाय 45 R19 कॉन्टिनेंटल टायर्स लगे, जो कि ट्यूबलेस टायर्स है ऑब्वियसली। सो 235 बाय 45 R19 कॉन्टिनेंटल टायर्स लगे, 19 इंच के एलॉय व्हील्स हैं, और अंदर से बैठ के मैं आपको बताऊंगा वैसे, पर मैं जरा अभी इसे बाहर से जरा अच्छे से देख लूं, क्योंकि ये एक लौटी ऐसी सेडान कार है, और बाकी आजकल जब SUV का ज़माना है, BYD जो है सेडान में इन्वेस्ट कर रहा है, सो इट्स अ बिग थिंग टू डू। ओके जसप्रीत, टेल मी अबाउट द कार। इट्स अ प्रीमियम लुक कार यार, प्रीमियम एकदम। बताइए अभी। This is our Seal Performance variant, हाँ which offers you around 580 kilometers of practical range. ओके, And this 580 is 580 Okay. in real world, sir. ओके This is our all-wheel drive version. ओके, ऑल व्हील which- ड्राइव, right? Which offers around 670 Nm of torque. अच्छा ऑल व्हील ड्राइव में, सॉरी ऑल व्हील ड्राइव में 4x4 भी लग सकता है इसमें? So basically, all-wheel drive 4x4 ही होती है. ओके ओके ओके। Basically, इसके जो 4 टायर्स हैं, उन 4 So टायर्स is the only sedan car which can drive 4x4 in the market और ऐसा कुछ? अदर ब्रांड्स के अंदर भी आती है बेसिकली. ओके ओके बेसिकली एक EV सेगमेंट ये मतलब कि अराउंड 3.8 सेकंड के अंदर 100 टच कर देती है सर. Okay, 0 to 100 का रेशियो 3.8 सेकंड के अंदर. एंड प्लस जो हमारा BYD का स्टैंडर्ड फीचर है, दिस इज अ रोटेटेबल स्क्रीन. दिस इज 15.2 इंच स्क्रीन. ओके देयर इज वायरलेस स्मार्टफोन चार्जर है. ओके, I don't have the wireless smartphone now. Okay. ओके ओके, इट शोज। तो अगर मैं इसको यहाँ भी रख दूँ तो भी दिखा देगा? या ओके ओके, वायरलेस चार्जिंग फॉर दिस, दैट्स गुड, दैट्स बेटर। सो 2 phones कैन बी चार्ज साइमल्टेनियसली, राइट. और ये जो चार्जिंग है वो बैटरी, कार की बैटरी से ही ले रहे होंगे पावर, राइट? जस्ट इट्स बेसिकली कार के अंदर एक ऑक्सिलरी बैटरी होती है. जो भी हमारी एलईडी स्क्रीन वगैरह की जो अभी जो प्ले हो रही है, बेसिकली हमारी ऑक्सिलरी बैटरी से हो रही है. बाकी जो हमारी मेन बैटरी होती है वो मोटर को ड्रिवन करती है सर. ओके ओके। तो अभी मुझे बताइए, ये जो नंबर है ये क्या कर रहे हैं? ये बेसिकली से कार का प्यूरीफायर है. इसके अंदर इनबिल्ट AQI आपको मिलता है कार के अंदर, ओके जो कि कैबिन के अंदर जितने भी बैड एयर है उसको सारे क्लीन कर देता है. ओके। सो और इसका जो फिल्टर हमें फिर साफ करना पड़ेगा जैसे, तो कैसे ये ऑटोमेटिक करता है? बेसिकली जो इसके अंदर जो एयर प्यूरीफायर जो फिल्टर लगा रहता है वो आप जब भी आप अपने व्हीकल की सर्विस कराते हैं अराउंड 20,000 किलोमीटर या 40,000 किलोमीटर पर इसके अंदर चेंजेबल होता है. ओके ओके, 20 to 30,000 किलोमीटर के बीच में, राइट सर. ओके। और ये ऑल व्हील ड्राइव है, चलो 4x4 भी चल जाएगी, दैट्स बेटर। और ये जैसे 0 to 50% या 70% कैसे, फिर कितना टाइम लगता है इसे चार्ज होने में? अगर मैं इसके 0 to 100 की बात करूँ सर, अगर आप इस जो आपको व्हीकल के साथ मिलता है 7.2 किलोवाट का होम वॉल माउंट चार्जर, ओके उसके अंदर से बेसिकली अराउंड विद इन 7 to 8 आवर्स के अंदर व्हीकल 0 to 100 चार्ज हो जाता है. आप अपने नियर मतलब कि इजीली अपने होम चार्ज से इसे कार को चार्ज कर सकते हैं. बाकी जो हमारी रोड साइड पे जो हमारे DC चार्जर लगे रहते हैं उसके साथ कार विद इन 40 मिनट्स के अंदर चार्ज हो जाती है. ओके ओके, दैट्स गुड। आई मीन दैट्स समथिंग सीरियस पीस ऑफ इंजीनियरिंग व्हिच आई एम लुकिंग नाउ, क्योंकि मैं टेस्ला के शोरूम में भी गया था एंड सेम वाज द ऑर्गेनाइजर, संजय सर ने ऑर्गेनाइज किया था वो। ओके ओके. सो दैट वाज फर्स्ट डे फर्स्ट शो, तो मैं उतना में इम्प्रेस नहीं हुआ था। या एक चीज़ मुझे टेस्ला में अच्छी लगी, बूट स्पेस उसमें ज़्यादा है, इसमें थोड़ा सा कम है। बट आपने टिल्टेड स्क्रीन जो आप दे रहे हो, ये स्क्रीन रोटेटेबल स्क्रीन जो दे रहे हो, वो थोड़ा इंप्रेसिव लगा मुझे। आई डोंट नो क्या टेस्ला में वो होता है कि नहीं होता, ये नहीं पता। टेस्ला के अंदर ये रोटेटेबल स्क्रीन वाला नहीं, यस यस यस, एंड 360 डिग्री कैमरा तो है ही, यस ओके। एंड व्हाट मतलब और क्या यूनिक बनाता है इस कार को यार, आप बताइए। सर बेसिकली जो इसकी 0 to 100 की जो रेंज है विद इन 3.8 सेकंड के अंदर टच कर देती है। ये एक तरीके की फास्टेस्ट सेडान कार है सर अभी इन ईवी सेगमेंट के अंदर। ओके, एंड बात करें इसके अंदर फ्रंट के अंदर, ये फर्स्ट टाइम आपको फ्रंट भी मिल जाता है अराउंड इसका 150 लीटर्स का। ओके यस आई सॉ दैट, या ओके। और इसमें स्पीकर कौन से, मतलब ये किस कंपनी के लगे हैं?
ये बेसिकली सर डाइन ऑडियो के स्पीकर है जो BYD मैन्युफैक्चर्ड स्पीकर लगे हुए हैं इसके अच्छा अंदर। BYD ही मैन्युफैक्चर Right, sir. करती है। बेसिकली 95% का BYD मैन्युफैक्चर्ड है इसके अंदर। ओनली Okay. टायर एंड मिरर से इसके अदर ब्रांड से लिए गए हैं सर। ओके ओके ओके, शायद तो वो कॉन्टिनेंटल के ही है। हम्म। सो ये कार जो है अभी मेड इन इंडिया है या चाइना से बन के आ रही है, असेंबल हो रही है? CPU यूनिट बेसिकली अभी ये इंपोर्ट ही होके आ रही है। ओके ओके। अच्छा, जो आप अगर क्वेश्चन आंसर में आपने देखा रहेगा, पता नहीं आप थे कि नहीं, मेरा क्वेश्चन था कि BYD की सबसे जो किलर कार मुझे लगती है वो है यांगवैंग राइट U8, राइट? राइट सर। That is, they claim that it can run in water for 30 minutes Right, and sir. rotates 360 degrees. राइट तो वो कब लॉन्च हो सकती है? मतलब वो उसका मुझे बड़ा इंतजार है। मुझे थोड़ा सा ना उदासीनता भी हुई कि मुझे लगा शायद ये कार देखने को मिल जाएगी, राइट। लेकिन वो कार मुझे देखने को मिली नहीं यार आज। तो थोड़ा सा मुझे ऐसा लगा कि काश वो कार अगर आज लॉन्च हो जाती तो ये जगह भी कम पड़ जाती, लोगों की भीड़ लग जाती, और हम बाहर उस कार को अगर रोटेट करके दिखाते तो पूरी दिल्ली की जनता सड़क पर आ जाती देखने राइट के लिए। सर। बेसिकली अभी हमारे BYD के भी अपकमिंग प्लान्स है कुछ और न्यू कार्स लॉन्च करने की। बाकी जल्दी आप इसे यांगवैंग को भी आप देख पाएंगे हमारे शोरूम के अंदर। और अच्छा, यांगवैंग की क्या प्राइस रह सकती है मतलब? सर बेसिकली अगर अभी इंडियन मार्केट के अंदर अभी उसका ऑफिशियल प्राइस सेगमेंट अभी आया नहीं है। ओके आप बेसिकली कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं कि क्या प्राइस जाएंगे। ओके बाकी जो भी प्राइस जाएंगे इट्स अ गेम चेंजर प्रोडक्ट। ओके। और ये स्लाइड होता है कि ये सर बेसिकली ये प्रॉपर मून रूफ है। ओके, हाँ। तो ये जा सकता है? नहीं, दिस इज अ फिक्स क्लास। फिक्स क्लास। Right. अच्छा अच्छा, दिस इज नॉट ओके ऑपनेबल। ओके दिखा सकते हैं। ओके। जैसे नॉर्मल व्हीकल्स के अंदर आप 360 डिग्री कैमरा दिखता है नॉर्मल आपको ये भी। बाकी BYD की कार्स के अंदर आपको स्टैंडर्ड फीचर ये अंडर द बॉडी भी आप इजीली देख सकते हैं, जैसे कि कोई रफ रोड होती है, हाँ हाँ हाँ, जैसे कोई या पिट होल्स वगैरह आपको लग रहा कि पत्थर लग राइट सकता है। राइट ओके राइट ओके पिट होल्स वगैरह होते हैं तो आप इजीली आप इसे पार्क कर सकते हो कार को। ओके ओके ओके। ये और ये फिक्स क्लास है, ये वैसे नहीं हो सकता। अब बेसिकली ये सारी टच लाइट्स हैं। तो इसमें एम्बिएंट लाइट्स भी हैं? राइट सर। एम्बिएंट लाइट्स जो राइट सर, दिस इज एम्बिएंट लाइटिंग। ये पूरा पैटर्न है सर यहाँ पर। बाकी एक और यूनिक चीज है, मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। इस कार के अंदर स्लाइडेबल वाला कोई पार्ट ही नहीं है, जैसे नॉर्मल कार्स के अंदर आप हाँ। एडजस्ट करते हो। इसके अंदर आपका इलेक्ट्रिक के लिए अच्छा जैसे इसके अंदर यू कैन इजीली एडजस्ट फ्रॉम देयर। ओके, अच्छा ओके ओके। हाँ हाँ हाँ, ओ सीरियसली? अरे तो ये भी, अच्छा ये भी ओके, ये भी ओके। फिर मैं इधर करूँ, देखो। हाँ यार, ये हो रहा है सीरियसली। अच्छा, जैसे संपर्क, ये तो कुछ मतलब यूनिक चीज बताई है। ये तो किसी और कार में मैंने देखी नहीं है, Right, टेस्ला sir. में भी नहीं देखी राइट मैंने। राइट राइट। तो ये BYD की सब कार्स में कि खाली यही कार में? सर बेसिकली अभी ये जो फीचर है अभी ये सील के अंदर ही आ रहा है। बाकी अपकमिंग कार्स के अंदर हमारे में ये वाला फीचर आ सकता है। ओके ओके ओके, ठीक है। अच्छा, और क्या जैसे मैं पूछना चाहता था, ये उसमें एडास है इसमें? हाँ, लेवल 2 एडास आता है। लेवल 2 एडास। ओके ओके। एंड प्लस इसके अंदर हेडअप डिस्प्ले भी आती है। मतलब कि जैसे अगर आप हाई या, स्पीड या, पे या। ड्राइव करते हैं आपको मे बी विजिबल हो रही होगी, मे बी मुझे तो नहीं विजिबल होगी यहाँ से, विद के ड्राइवर साइड को विजिबल होगी, पे कैमरा के अंदर शो हो रही होगी वो स्क्रीन। ओके। अगर आप एक बार फोकस करें आपको विजिबल हो रही है सर? नहीं नहीं, अभी तो नहीं दिख रही। बेसिकली अगर आप ड्राइव करते हैं तो आपको हाँ, ये शायद पूरी वो स्क्रीन आपको drive- सामने हो जाती है। दिस इज द हेडअप डिस्प्ले सर। ओके, ये मुझे अच्छा लगा। एक्चुअली बच्चों को पता लगेगा तो बच्चे इसे खेलेंगे। तो यस, आप बेसिकली इसे होल्ड करके भी रख सकते हो ताकि अगर जैसे आपके चिल्ड्रन वगैरह कार के अंदर बैठे हैं तो ये फिर जितना बड़ी टच कर रहे हैं तो वो आपके अकॉर्डिंग एडजस्ट रहेगा। पीछे भी है, यस पीछे का भी कंट्रोल हो सकता है। ये जो कैसे जो आप इधर कर रहे थे इसमें, पीछे का मैनुअल है ये। मैनुअली है? राइट। ओके ओके ओके। बाकी कप होल्डर्स आते हैं, जैसे कि अगर आपकी वो बोतल वगैरह इसके अंदर इसमें फ्रिज है क्या? मतलब बोतल अगर ठंडी रखनी है तो? सर बेसिकली कैबिन के अंदर ही जो क्लाइमेट कंट्रोल है उसी के भी यहाँ पर आपके Okay, जो आप अच्छा। अपने कैन या बोतल्स का रखते हो मेंटेन करके रखता है टेम्परेचर। मुझे लगता है यांगवैंग में शायद फ्रिज है उसमें, मतलब है ना? उसके अंदर ओके। और ये कितना स्पेस है इसमें? अराउंड सर इसके अंदर आप अपने 2 बोतल्स रख सकते हो इजीली। ओके। हाँ। बोतल नहीं, मतलब कुछ और भी रख सकते हैं। यू कैन इजीली कैरी योर कैन्स वगैरह आल्सो। हाँ, भाई बोतल भी नहीं, और भी कुछ चीजें रख सकते हैं। ठीक है, तो बोतल नहीं रखनी, पानी की बोतल रख लेना। ड्रिंक एंड ड्राइव मत करना भाई। Right. BYD डजंट सपोर्ट ड्रिंक एंड ड्राइव। तो जो जसप्रीत ने राइट सर। हाँ, जसप्रीत ने जो कहा ना कि बोतल रख सकते हैं, पानी की बोतल रख लो, दूध की बोतल रख लो, लेकिन वो वाली बोतल मत रखना, क्योंकि आई टॉक अबाउट ओनली वाटर बॉटल्स राइट। तो वही बात है यार मैं तो बहुत इम्प्रेस हूँ ये BYD की इंजीनियरिंग में। यस, कार चाइना से बन के आ रही है, और अगर इंडिया में बनने लग जाए तो हो सकता है इसकी कॉस्ट कुछ कम हो जाए।
हो सकता है ऐसा कुछ? सब मे बी एक्सपेक्टेड है, अगर इंडियन के अंदर मैन्युफैक्चर होते तो मे बी कुछ कॉस्ट के अंदर कुछ कम हो सकती है वैसे। ओके बाकी जैसे ऑफिशियल आता है BYD का जैसे अपडेट आता है देन उसके बाद ही सारे प्राइस वगैरह एडजस्ट होते हैं। ओके, तो मुझे नहीं लगता इतना कुछ इफेक्ट पड़ेगा, लेकिन यस जो मैंने बोला, जो जिसका मैं इंतजार कर रहा हूँ बेसिकली अभी BYD इस प्राइस सेगमेंट के अंदर भी, जिस प्राइस सेगमेंट के अंदर आपको अभी सेल ऑफर हो रही है, जैसे कि सेल होगी, सी लाइन होगी, बट ये जो प्रोडक्ट है इसका अभी कोई कंपैरिजन नहीं है अभी। ओके व्हेन यू ड्राइव द कार देन यू फील द कार। यस, तो अभी ड्राइव करने का तो मुझे मौका नहीं मिला है क्योंकि अभी कार उतारी नहीं गई है। सो कभी फ्यूचर में ऐसा मौका मिला तो ज़रूर मैं कार चलाऊंगा ये BYD की। और क्योंकि ये और भी जैसा जसप्रीत ने कहा कि और भी वेरिएंट और भी कंपनी जो है सेडान में ऑल व्हील ड्राइव चलाती है, मुझे लगता है ये थोड़ी अलग रहेगी, ये बिल्कुल अलग रहेगी। और क्योंकि BYD ने बनाई है तो भाई ये अलग पीस ऑफ इंजीनियरिंग है बिल्कुल। सो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड फॉर इट एंड एवरीबॉडी शुड लुक फॉरवर्ड फॉर इट। ये नहीं देखना है कि ये चाइना का है, चाइना का नहीं, चाइना हमारा पड़ोसी है भाई, चलो ठीक है, थोड़ा ऊपर नीचे होता रहता है, बट वी शुड वर्क टुगेदर एंड आई गेस वी शुड ट्रांसफर टेक्नोलॉजी भी होनी चाहिए। हमारे पास भी उनकी कार, हमारी कार भी उधर जानी चाहिए जो हमने बनाई है, उनकी कार की जो इंजीनियरिंग वो भी हमारे पास आनी चाहिए। तो यांग वैंग हो गई या जो भी है तो वो लॉन्च होनी चाहिए। मैं बिल्कुल उसका इंतजार कर रहा था। खैर ठीक है, अभी जसप्रीत मुझे बोलेगा कि भाई यांग वैंग ही किया जा रहा है राइट लेकिन सच में भाई बहुत मज़ा आया लेकिन आज। और अगर इस कार को मैं चला सकता था तो और भी मज़ा आता दिल्ली की सड़कों पे, क्योंकि आपको पता है दिल्ली में सबसे ज़्यादा जो कारें जो चलती हैं आजकल सेडान नहीं चल रही हैं, वो चल रही हैं अपनी SUVs राइट सर। अगर आप SUVs SUV लवर है तो हमारे पास सी लाइन 7 भी है। Yes. मैं आपको अभी वो भी शोकेस करवाता हूँ। या वो भी मैं शोकेस करूंगा। आज मैं जसप्रीत को नहीं छोड़ने वाला हूँ, मैंने उसको पकड़ा तो मैं इसको बिल्कुल छोड़ूंगा नहीं। तो चलो अभी सी लायन में चलते हैं भाई, सी लायन 7 राइट सर। यस सर जसजीत, ये मैं देख रहा हूँ इसका सी लायन में 235/50 लगा है और वहाँ पे 235/45 लगा है, तो Right. ज़्यादा टायरों में कुछ फर्क नहीं है राइट सर। बेसिकली अगर मैं रियर प्रोफाइल की बात करूं, इसके अंदर आपको 255/45 R19 इंचेस के टायर मिल जाते हैं। दोनों के अंदर आपको 90 इंचेस के टायर मिलते हैं। अगर आप इसका परफॉर्मेंस वेरिएंट प्रेफर करते हैं अराउंड 20 इंचेस के आपको टायर मिल जाते हैं। हाँ, अराउंड 150 लीटर का आपको स्पेस मिल जाता है। आप अपने नॉर्मल अपने लैपटॉप चार्जर या बैग एंड जो कार का पोर्टेबल चार्जर होता है आप इजीली यहाँ पे कैरी कर सकते हो। ओके, काफ़ी बेसिकली मैट यस ओके। आप इजीली अपने मतलब कि ऑफिस बैग या लैपटॉप बैग आप इजीली कैरी कर सकते हो। आपके कार के अंदर स्पेस फॉर मोर काफी है राइट। पर कार के अंदर आपको NFC का भी ऑप्शन मिल जाता है। आप NFC बेसिकली एक कार्ड ऑप्शन पेमेंट्स के लिए। NFC सर बेसिकली पेमेंट के लिए नहीं, बेसिकली इसके अंदर कार्ड की ऑप्शन आता है। जैसे आप नॉर्मल अपनी कार के अंदर की कैरी करते हो, उसके अंदर आप बेसिकली आपको BYD का एक कार्ड मिलता है जिसे हम NFC की कार्ड बोलते हैं। यू कैन इजीली टैप देयर देन योर कार इज अनलॉक्ड। ओके यू कैन इजीली व्हाट इफ दैट कार्ड इज लॉस्ट, अगर मैं कार्ड अगर घूम गया और किसी और के हाथ में लग गया तो फिर आप बेसिकली से कार को मतलब कि जो कार्ड होता है वो आप डीएक्टिवेट करवा सकते हो। अच्छा ओके। सो अगर की नहीं चाहिए कार्ड से भी ऐसे हो राइट से आपने बेसिकली टैप करना है, कार आपके अनलॉक हो गया, आप Okay, इजीली okay. ड्राइव कर सकते हो। अगर तो अभी पेमेंट होता तो अब कार भी खुल सकती है कार्ड से राइट। यस। इट्स एक्चुअली लग्जरियस है। अरोमा आ रहा है वो उसका जो रहता है ना फ्रेश, ये जो Right. अपना लेदर का उसका अरोमा आ रहा है एक्चुअली। ये बड़ा हार्ड था मेरे लिए। यस। तो इसमें सनरूफ है? सर इसके अंदर भी आपको मून रूफ मिलते हैं, फिक्स मून रूफ। ओके। आप एक बार कार ऑन कीजिए सर। ओके अच्छा, तो ये फीचर भी उसमें भी है? राइट सर। ये फीचर जो अपने इसमें भी है और सेडान में? सर बेसिकली वो 2025 वेरिएंट है। Okay. उसके अंदर इलेक्ट्रिकली सनशेड नहीं आता था। अच्छा। अब जो हमारी कार आ रही है उसके अंदर सील के अंदर इलेक्ट्रिकल सनशेड आता है। ओके आ रहा है मतलब। अच्छा, तो ये कहाँ से बंद होता है? यहाँ से? ये सर बेसिकली ये पूरा टच है, आप इजीली यहाँ पे आप टैप करेंगे तो सनशेड क्लोज हो जाता है। जो कि अगर इसके अंदर बेसिकली 2 वेरिएंट्स आते हैं, ये हमारा प्रीमियम वेरिएंट है सर। अगर आप इसके अंदर परफॉर्मेंस से वेरिएंट प्रेफर करते हैं वो ऑल व्हील ड्राइव वर्जन के साथ आता है। ओके। तो लेकिन मुझे ये इसमें 235 लगा, इसमें 255 ऐसा क्यों? सो बेसिकली डिपेंड करता है, जैसे कि ये प्रॉपर एक कॉम्पैक्ट SUV है। व्हेन यू ड्राइव द कार एक टॉर्क आता है पीछे, तो उस कंफर्ट को मैच करने के लिए ये टायर ऐसे यूज करते हैं। अच्छा ओके। ताकि जो आपकी कंफर्ट और ड्राइविंग कंफर्ट है वो एक तरीके का बना रहे। ओके आपको इजीली और कंफर्ट ड्राइव मिले। ओके। तो कार को अंदर चेक कर सकते हैं अभी? हाँ श्योर। उसके बहुत ही प्रीमियम फील है, बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम फील। टेस्ला से भी ज़्यादा प्रीमियम फील ये कार दे रही है। सर प्लीज प्रेस द ब्रेक।
अब इस टाइम आपकी कार बिल्कुल स्टार्ट है सर, रेडी टू ड्राइव मोड पर है। ओके अदर कार्स के अंदर आपको एक वाइब्रेशन फील होती है, एक नॉइज फील होती है। बेसिकली BYD की आप किसी कार के अंदर आपको नॉइज वाइब्रेशन बिल्कुल नहीं मिलेगी। एंड मैं इसके ग्लासेस की भी बात करूँ, बेसिकली अकोस्टिक ग्लासेस है सर, आपको बाहर का नॉइज बिल्कुल भी आपको मतलब कि इल्यूशन नहीं होगा, नॉइज कैंसलेशन ग्लासेस है इसके अंदर, राइट। ओके प्लस ये अगेन आपको इसमें रोटेटेबल स्क्रीन मिल जाती है। एंड जो इसके अंदर आपको अगर मैं जैसे अदर कंपनीज के अंदर मैं अदर ब्रांड्स की भी बात करूं तो उसके अंदर आप अपना वायरलेस स्मार्टफोन चार्जर रखते हैं तो वो हीट कर जाता है जितनी भी हमारी कार्स होती है। प्लस आपको BYD के अंदर एक कूलर वेंट फील होता है। यस 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 आपको आप अपना मोबाइल चार्ज कीजिए, आपका मोबाइल हीट अप नहीं होता है इसके अंदर, राइट। ओके प्लस ये अगेन आपको वाटर होल्डर मिल जाता है। प्लस ये पूरा एक आपको एम्बिएंट लाइटिंग का टच मिल जाता है इसके अंदर। ओके आप इसके अंदर अपने मूड के हिसाब से अपनी मतलब कि प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग आप इसके अंदर अपना एम्बिएंट लाइटिंग भी चेंज कर सकते हैं। तो ये Plus- बटन दबा के इस राइट सर, आप कीजिए को। ओके तो ये दोनों एप्पल और एंड्रॉइड राइट सर, मतलब कि बहुत मतलब कि जितनी भी हमारी कार आती है सबके अंदर आपको वायरलेस एंड्रॉइड पे एप्पल कार मिल जाता है। ओके प्लस आपको ये हेडसअप डिस्प्ले भी आपको मिल जाती है आराम। व्हाट्सएप डिस्प्ले हेडसअप डिस्प्ले सर, अच्छा, बेसिकली heads-up आपकी ड्राइविंग display, कंफर्ट को okay. इजीली करने के लिए। बाकी डाइन ऑडियो के साउंड सिस्टम भी आपको इस कार के अंदर मिल जाता है, राइट। ओके और उसमें भी सेम फीचर है, ये अपना हम इधर से कंट्रोल कर सकते हैं स्क्रीन से। राइट सर, अच्छा आप इसे मर्ज भी कर सकते हैं, जैसे कि अगर आपने अपना अलग जैसे आपने नेविगेशन यूज करनी है, मैंने स्पॉटिफाई यूज करना है तो आप डिवाइड कर सकते हैं एक स्क्रीन को। ओके ओके को ड्राइवर डिवाइड कर Right, सकता है, राइट, वो कर सकते हैं। यस और ये इसमें ये फीचर उसमें नहीं है अपनी सेडान में। सर बहुत कार्स के अंदर आता है जितनी अच्छा 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 Right. ओके ओके प्लस कार के अंदर आपको 11 स्पीकर मिल जाते हैं डाइन ऑडियो के, क्योंकि BYD में एक ब्रांड है। अगर मैं बात करूँ जो ड्राइवर सीट्स की बात करूँ, ये 11 वे एडजस्टेबल सीट्स है सर। नॉर्मल कार के अंदर 4 वे एडजस्टेबल 8 वे एडजस्टेबल आती है, इसके अंदर 11 वे एडजस्टेबल सीट्स है। अच्छा मैं अभी आप जब उधर से गए थे ना, ये अपने आप सीट एडजस्ट हो रही थी। सो बेसिकली दिस इज द वेलकम एंड गुड बाय फीचर। ओके व्हेन यू ओपन द कार, जैसे जैसे आप कार ओपन करेंगे तो आपकी सीट बिल्कुल बैक आ जाएगी, आपका कार वेलकम करती है। देन आप जैसे आप अपना डोर बंद करते हैं तो आपकी सीट उसी पोजीशन पे आती है जैसे लास्ट ड्राइव पे आपने जो सेट करी हुई थी। ओके ओके ठीक है स्पेस की कोई कमी नहीं है। और ये ग्लास कौन सा है ये तो बेसिकली टफन ग्लास होता है। ओके मतलब कि कार की मैं बात करूँ सेफ्टी के रिगार्डिंग 5 स्टार ग्लोबल एनकैप रेटिंग है कार की। सो दिस इज टफन ग्लास। Right. जैसे आपको पता है ना मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पे ये जब लैंडस्लाइड होता है तो कार डैमेज हो जाती है, खासकर ये रूफ जो है वो डैमेज होती है, तो ये कितना मतलब ये झेल सकता है? तो बेसिकली अगर मैं बात करूँ ग्लास की, अगर ये बेसिकली टफन ग्लास है, इनके अगर इन केस अगर इसके ऊपर कुछ ऐसा कोई गिरता भी है तो ऐसा नहीं ग्लासेस नीचे आते, बेसिकली इसके ऊपर लैमिनेटेड एक लेयर होती है। ओके अगर इनके ब्रेक भी होता है तो ग्लासेस आपके कैबिन के अंदर नहीं आते सर। ओके 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 सो मतलब अंदर का पैसेंजर पूरी सेफ्टी के, और अगर सेफ्टी की बात करूँ तो BYD की पहले प्रायोरिटी सेफ्टी होती है। यस अगर मैं यूरो रेटिंग की बात करूँ उसके अंदर 5 स्टार है सर। एडास की बात करूँ तो लेवल 2 एडास मिलता है। सेंसर हमारे स्टार्टिंग वेरिएंट से आ जाते हैं सर। या ओके और 360 डिग्री तो है ही राइट या और ये भी ऑल व्हील ड्राइव है, राइट? राइट सर, ये बेसिकली हमारा प्रीमियम वेरिएंट है। अच्छा ये हमारा प्रीमियम वेरिएंट है सर। टॉप ये बेसिकली रियल व्हील ड्राइव है। ओके रियल व्हील ड्राइव। In 3 line there are 2 variant. First is premium and second one is performance variant. ओके ये मैं अभी देख रहा हूँ ये नंबर्स जो है वो बंद Right sir, this is a heads-up display. ओके आप अपने कैमरे शो कर सकते हैं, कैमरे के अंदर ये सीट कैप्चर हो सकती है। आपको बेसिकली फोकस करना पड़ेगा इसके ऊपर। आप यहाँ से थिंग सुन नहीं आ रहा, नहीं आ रहा एक्चुअली। मैं पता नहीं ऐसे क्यों दिख रहा है, मैं नेकेड आई से देख पा रहा हूँ, वैसे नहीं दिख रहा है। आप सर एक बार जूम कीजिए सर। ओके ओके अब दिख रहा है, बहुत लाइट दिख रहा है, बहुत लाइट। राइट यस सर। ओके और इसको हम एडजस्ट कर सकते हैं, जैसे अभी थोड़ा नीचे था तो मुझे दिख ही नहीं रहा था, तो ये एडजस्ट हो सकता है ऊपर थोड़ा? एक मिनट सर, मैं एक मिनट चेक हाँ करते हैं। वो ऑल व्हील ड्राइव वर्जन के अंदर आता है अराउंड 54.90 का इसका एक्चुअल प्राइस पड़ता है। ओके 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 ठीक है। राइट तो ये सब वो कस्टम ड्यूटी सब लगा कर ही हो रहा है ना, अपने को एक्स्ट्रा राइट सर। रोड, इसमें रोड टैक्स तो नहीं लगता इलेक्ट्रिक कार सर बेसिकली दिल्ली के अंदर आपकी नॉमिनल से फीस जाती है 8,250 रुपीज ओनली। ओके अगर मैं अदर स्टेट्स की बात करूं तो वहाँ पे अराउंड आपका 10% तक आपको बेयर करना पड़ता है सर। ओके तो मैंने कुछ सुना था कि इलेक्ट्रिक कार्स में अभी वो सर बेसिकली इन दिल्ली की बात हटाने वाले हैं एक्चुअली या सर बेसिकली अभी तक की जो दिल्ली गवर्नमेंट की पॉलिसी है वो रोड टैक्स के ऊपर है। ओके आपका जो रोड टैक्स है उसके ऊपर सब्सिडी है सर बेसिकली। जैसे अदर मैं आईसी इंजन की बात करूँ अभी आपका 10% लगता है सर रोड टैक्स एक्स शोरूम प्राइस का, पर ईवीज के अंदर सर ये बिल्कुल नहीं ली है सर। आपको नॉर्मल बस डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस वगैरह देने होते हैं। अच्छा
अच्छा, और ये पार्किंग मोड में अगर मुझे कार करनी है तो फिर कैसे? सर आप नॉर्मली यहाँ पे पार्किंग का आपको ये जो पी स्विच दिख रहा है, आप नॉर्मली इसे प्रेस करते हो तो कार आपकी पार्किंग मोड पे चल जाती है। तो प्रेस करूँ तो हो जाएगा? राइट से आप एक बार ब्रेक पेडल प्रेस कीजिए सर। अच्छा ओके, ब्रेक पैडल दबाना जरूरी है। आप पी प्रेस कीजिए, कार पार्किंग मोड पे आ गई सर। अच्छा ओके। अच्छा, इसमें ये भी फीचर है क्या जैसे महिंद्रा की कार में फीचर है शायद, या किसमें कि जब तक सीट बेल्ट नहीं लगाएंगे तब तक कार आगे नहीं बढ़ेगी, ऐसा कुछ है? सर बेसिकली अगर मैं हर एक ब्रांड की बात करता हूँ, जब तक आप सीट बेल्ट वेयर नहीं करते तब तक बीप साउंड आती है सर। कार आपकी ड्राइव मोड पे जा सकती है, बट जो साउंड आती है वो काफ़ी लाउड आती है। जो बीप साउंड आपको अलर्ट साउंड जो आती है वो आपको आनी स्टार्ट हो जाती है। एंड प्लस यहाँ पे आपको अलर्ट कमेंट्स पे आती रहेंगी। नहीं, मुझे XUV 700 का मुझे बताया गया था कि जब तक ड्राइवर जो है सीट बेल्ट ना पहने कार जो है वो बढ़ती नहीं है, ऐसा कुछ था। आई डोंट नो वेदर इट्स ट्रू और नॉट। राइट सर, बेसिकली ट्राई करना पड़ेगा बिकॉज़ आई हैव XUV 700। अरे वाह भाई, ले आते ना यार, देख लेते मैंने हैं। चेक नहीं किया क्योंकि मैं हमेशा बेल्ट पहन लेता हूँ तो किसकी? पता ही नहीं चला कि चलती है। गार्ड साहब के But पास? आज यही चेक करना है। चेक कर लेना है और मेरे को बता भी देना है, डन डन डन। है ना? क्योंकि वो फीचर अच्छा है, जब तक आप सीट बेल्ट नहीं पहनो तब तक कार आपकी बढ़ेगी नहीं आगे, अगर ऐसा कुछ है तो। अब बीप Yes. वाला तो है, मतलब हाँ। वो तो दोनों सीट का भी आ जाता है उसमें तो, बट ड्राइविंग वाला में कोई चेक अब वो अडास लगाने में होता है, किसमें होता है वो ये भी पता देखना है। पड़ेगा। बाकी क्योंकि जैसे कि आगे नॉर्मल जैसे कि कार के अंदर आपको वॉइस असिस्टेंट भी मिल जाता है। हम्म। जैसे मैं बोलता हूँ हाय BYD, हाय BYD, I'm listening. प्लीज क्लोज द सनशेड। Closing the sunshades for you. हाय BYD, I'm listening. प्लीज रोटेट द स्क्रीन। Okay. द टूर हो चुका है, अभी अलविदा लेने का वक्त आ गया है। अच्छा, मैं आपसे मिलवाने वाला था ऐसे शख्स से जो हमने पहले भी मिल चुके थे, पहले भी अकोमोडेट कर चुके थे। वो और कोई नहीं है, वो है हमारे संजय सर। संजय सर, हाउ आर यू? नाइस टू मीट यू अगेन। लास्ट मोमेंट में आपने मुझे बताया सर, लेकिन क्या था, आपसे मिलने की इच्छा थी, मतलब सोचा चलो चले ही चलते हैं आज। ओके, तो भाई ऐसा है कि संजय सर से मेरी मुलाकात टेस्ला में हुई थी। अगर टेस्ला का वीडियो नहीं देख रहा है तो देख लेना, डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो टेस्ला का फर्स्ट डे फर्स्ट शो था, मैं इनवाइटेड नहीं था, पर 3-4 घंटे खड़े रहने के बाद सर को जब मैंने, मेरा भी डिफेंस बैकग्राउंड है, तो सर ने मुझे अलाउ किया। सबको अलाउ कर दिया था, सर बड़े दिल वाले, सबको अलाउ कर दिया था, मुझे भी अलाउ कर दिया। तो उसके साथ सर से के साथ मेरी पहचान हो गई, और फिर उसके बाद सर के साथ थोड़ा बातचीत होती थी। मैं ये उनसे ये सर से ये पूछना चाहता हूँ कि आज मेरी याद कैसे आ गई? ऐसा है, जब भी कोई लॉन्च कहीं भी होता है तो सबसे पहले तुम्हारी याद आती है। क्यों? क्योंकि तुम्हारा पैशन जो देखा है मैंने नई चीज लॉन्च होने के बारे में, दैट इज अमेजिंग। और मजे की बात यह है कि मैंने जैसे आपको बताया और आप सीधा यहाँ। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर कमिंग। और संजय सर जब भी बुलाएंगे तब भी आ जाएंगे भाई। और बैंगलोर में इनका मेजर स्कैम है जो कि 100 एकड़ में फैला हुआ है। तो सोच रहा हूँ कि कभी अगर साउथ में आता हूँ तो जरूर संजय सर मेजर स्कैम में जरूर आऊंगा। क्या क्या होता है वहाँ पे उसका पूरा एक डिटेल ब्लॉग बनाएंगे, एक नहीं 2-3 दिन लगेंगे उसको ब्लॉग को पूरा कवर करने में। तो जरूर संजय सर हम लोग जरूर आएंगे, मैं और मेरी वाइफ मॉम डैड विद फैमिली यस ऑफ कोर्स। और वायनाड जाएंगे तो संजय सर को बोलेंगे भी हमको जंगल सफारी करके लेके जाओ। जंगल सर्वाइवल जो होता है ना वो संजय सर के साथ करेंगे, ठीक है? ऐसा सर्वाइवल हमने नहीं देखा लगा, संजय सर करवाएंगे, क्योंकि आर्मी और एयरफोर्स जब मिलेगी तब जाके मजा आएगा। ग्रेट, थैंक्स फॉर कमिंग। हाँ सर, थैंक यू फॉर कॉलिंग मी। आपने सब याद तो किया कम से कम, वरना आप तो भूल ही गए थे। मैं ही इनको मैसेज करता था, सर ये किधर का है, ये किधर का। चलिए, तो भाई अभी जैसा आप लोगों ने देख लिया, संजय सर से भी मिल गए अपन और सब चीज़ें हो गई, क्वेश्चन आंसर्स हो गए। मैंने भी क्वेश्चन पूछा था लेकिन वो मैंने रिकॉर्ड नहीं किया, क्योंकि एक हाथ से माइक पकड़ो एक हाथ से क्वेश्चन पूछो, मुझे समझ में नहीं आ रहा था। मैंने क्वेश्चन ये पूछा था दोनों राजीव सर से, सिंघवी सर और चौहान सर से, कि यांग वैंग कार कब लॉन्च होगी। तो उन्होंने कहा कि देखो, जैसा मैंने ये भी बोला था कि ऑटो एक्सपो 2025 में वो कार दिखाई गई थी, तो जैसे मुंबई और दिल्ली में बारिश होती है, कारें जो है बंद पड़ जाती है, अटक जाती है। तो यांग वैंग अगर आप क्लेम कर रहे हैं कि कार जो है 30 मिनट्स नॉन स्टॉप चल सकती है, तो ये कार क्यों नहीं लॉन्च कर रहे? तो उन्होंने कहा देखिए टेक है हमारे पास, लेकिन अभी थोड़ा वक्त लगेगा उसको आने में। ठीक है, चलिए कितना वक्त लगेगा, लेकिन ये नहीं पता कि कितना वक्त लगेगा। तो आई डोंट नो, मैं उस चीज़ के लिए आया था। मुझे BYD उसी कार के लिए पसंद है, मुझे बाकी की BYD के लिए मैं इतना क्रेज नहीं हूँ, ठीक है? पर मुझे BYD की यांग वैंग बहुत सही लगती है। मुझे लगता है एक बार उसको ट्राई जरूर करना चाहिए, और अगर वो कार अगर हमें देखने को मिलती है
चलाने को मिलती है तो ज़रूर उस कार का भी हम रिव्यू करेंगे। जैसे आज हमने स्टोर का रिव्यू करा और खासकर हमें रिव्यू करवाया जसप्रीत ने, आप पाजी ने बताया, डिटेल में बताया मेरे को, थैंक यू। क्योंकि ना बाकी लोग बिजी थे, आप सामने मैंने ना कि यार आप ही को पूछ लेता हूँ कि भाई क्या क्या है इस कार में, और आपको जो नॉलेज है ना इस कार के बारे में वो इतना किसी और को भी नहीं था। टेस्ला में भी गया था ना तो लोग थोड़ा हिचकिचा रहे थे कि भाई क्या है इस कार में, लेकिन पाजी को बहुत कुछ पता था। तो थैंक यू जसप्रीत पाजी। जसकीरत निकल रहा है यार, जसप्रीत सिंह बुमराह यार, मेरे को जसकीरत सिंह रांगी निकल रहा है, जो जसकीरत रांगी नहीं, जसप्रीत सिंह बुमराह यार, वो अपना बॉलर बुमराह वो भी। अच्छा भाई आज तो सही गुगली डाली, बॉलिंग भी सही करी आपने। तो भाई चलो आज का ये जो है ना अपन प्रोग्राम यहीं पे खत्म करते हैं, ठीक है। और दिल्ली अगर कहीं मैं घूमने जा रहा हूँ, कहीं भी अगर घूमने जाता हूँ तो उसका व्लॉग अलग से बनाऊंगा। ये व्लॉग जो है आज अभी इसी वक्त यहीं पे खत्म हो रहा है। BYD का सबसे बड़ा शोरूम लॉन्च है, मैंने आपको दिखा दिया, और भी ऐसे शोरूम लॉन्च में दिखाता रहूंगा अगर मुझे इन्वाइट आता है या मुझे पता चलता है जो मेरे वर्क्स में अगर वो कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता है तो मैं ज़रूर उधर जाऊँगा, ठीक है। क्योंकि मुझे ये करना बहुत पसंद है, मैं रिव्यू करना मुझे अच्छा लगता है, मुझे लोगों से इंटरेक्शन करना अच्छा लगता है, नए नए लोगों से मैं मिलता हूँ तो अच्छा लगता है कि भाई लोग क्या क्या हो रहा है दुनिया में, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, अच्छा लग रहा है नहीं अच्छा लग रहा है ज़रूर बोलो यार, ज़रूर बोलो, ठीक है। और सबसे अहम बात, अपने देश से प्यार करो। देश में बहुत चीज़ चल रही है, ठीक है। बहुत से लोग ना हमारी कंट्री में रहकर ही कंट्री को गंदा करते हैं, कंट्री के बारे में बकवास बातें कर रहे हैं, बिल्कुल अच्छा नहीं है, ठीक है। जैसे आई लव BYD बोलते ना, अपने देश से भी प्यार करो, आई लव माई भारत, ठीक है। चलो बाय बाय, टाटा, टेक केयर, गुड बाय।